Okay, so now we're gonna start with a new chapter, that is reproduction. In over here, we're gonna cover the reproduction in plants as well as we're gonna cover the reproduction in human beings, also microorganisms. Okay, so reproduction. I'm writing reproduction. In your textbook you have, you know, different names. In state board you will have life process, in that reproduction is a part of it. Then in CBSE board you will have how do organisms reproduce, that is a completely new chapter on reproduction. Now when I say reproduction, what do you understand by that? Reproduction means what? It's something is getting reproduced, something is getting generated, something is coming up from existing organism. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि एक you know there are two individual human being, one is male, one is female, and then if a new individual is coming from them, that process is called as reproduction, where you are producing an organism again. That's why it is reproduction. Okay, so I gave an example of human beings, but reproduction happens in all the biotic factors, चाहे वो plants हो, human beings हो, animals हो, चाहे वो microorganism ही क्यों ना हो, each and every biotic factor, each and every living organism reproduces. Now the question is, why do we need to reproduce? क्यों करना है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन माना कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है. You know, when you study life process, reproduction also comes in life process. But as compared to different life processes, जैसे तुम्हारा circulation हो गया, right? Transportation, then you have your respiration. Compared to all these life processes, is reproduction same as other life processes? Because why I'm asking you this question, बाकी लाइफ प्रोसेस जैसे है, रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, अगर ये चीजें तुम्हारे बॉडी में नहीं हो रही है, मतलब अगर तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है या तुम्हारे बॉडी में जो है यू नो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. डिफिकल्ट क्या, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो. No organism can survive without respiration, without circulation, or many more life processes. But रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना भी तुम सरवाइव कर सकते हो. इट्स नॉट अ कंपल्शन फॉर योर बॉडी दैट यू हैव टू रिप्रोड्यूस. ओके, जब ये कंपल्शन नहीं है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें लाइफ प्रोसेस का तो हमने वही पढ़ा था कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच गोज ऑन इन आवर बॉडी जो हमको हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए, राइट? इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू सरवाइव. देन व्हाई रिप्रोडक्शन इज काउंटेड एज अ लाइफ प्रोसेस, जबकि रिप्रोडक्शन करना नहीं करना इट्स नॉट कंपल्सरी, राइट? स्टिल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज अ very vital life process. What is the reason for that? The reason is कि reproduction जो है क्यों कर रहा है इंसान? क्योंकि you want to keep your species survival alive on the earth. अगर सबने एक पॉइंट पे डिसाइड कर लिया कि हमको रिप्रोडक्शन नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल एंड ह्यूमंस है एंड सारे ह्यूमन बीइंग्स ने डिसाइड कर लिया कि अब से हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे. ओके, व्हाट विल हैपन इफ नो ह्यूमन बीइंग इज रिप्रोड्यूसिंग? क्या होगा? पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगा, राइट? बट कम होने से ज्यादा भी वो और कम होते जाएगा क्योंकि रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, एक भी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है. As a result of that क्या होगा? At the end, finally, जो existing individual है, once they finish their lifespan, they will die. And once they will die, they will have no one, no progeny, their genes won't be existing anymore, and slowly and steadily, completely organisms vanish हो जाएंगे. That means अगर कल को सारे human being ने decide कर दिया that we are deciding not to reproduce at all, after few years there won't be even a single individual
alive on earth, which is very bad, right? Obviously we want ki there should be organisms which should be existing after us, right? इवन वो प्रोजेनी, उसको हम बोलते हैं प्रोजेनी, कि हमारे बाद के जो इंडिविजुअल्स होंगे, हमारे बाद के जो जनरेशन होंगे, उनको हम बोलते हैं प्रोजेनी, राइट? सो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, it is necessary, because agar animals, plants, microorganisms, all these won't reproduce, then their number will reduce, and finally the particular species will vanish from the earth, which is not good for ecosystem. हमारे ecosystem में हर एक ऑर्गेनिज्म का रहना बहुत जरूरी है. एक ऑर्गेनिज्म का भी कंप्लीटली वैनिश होना will cause a drastic change in the ecosystem, right? That is why we say ना कि ecosystem क्या होता है? Ecosystem means biotic component, मतलब living component, abiotic component, और together उनका जो interaction होता है वो, okay? तो वो होता है हमारा reproduction का reason कि क्यों हम reproduce करते हैं. तो it is still a life process, but it is a kind of a life process which is not compulsory. उस मतलब ऐसा नहीं कि तुम reproduce नहीं करोगे तो you will die, nothing like that, okay? अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में. तो रिप्रोडक्शन मतलब इतना बेसिक तो समझ गया कि इट इज री एंड प्रोडक्शन. दैट मींस यू आर प्रोड्यूसिंग. व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग? ये हो गया पेरेंट्स, और पेरेंट्स से आएंगे हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग्स, राइट? और यू कैन से प्रोजेनी. एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है और वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके नया प्रोजेनी बनाएगा, नए ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा. गॉट इट? या? सो दैट इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम बात कर रहे थे कि टाइप्स क्या है, अलग अलग टाइप्स. तो जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, वी हैव टू मेजर टाइप्स. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है. व्हेन आई एम सेइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मींस ओवर हियर मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड, राइट? Two parents are involved. Two parents are involved of different sex. That means one has to be male and the other one has to be female. Right? So you have two different individuals, two parents which will be involved when I'm talking about sexual reproduction. Whereas in asexual reproduction, only one organism is involved. Clear till here? Yeah. Now, अगर मैं बोल रही हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो क्या वो एक ऑर्गेनिज्म में कुछ भी जीन्स का मिक्सिंग होगा या फिर कुछ भी न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं, राइट? मेरा जो डीएनए है, मेरे जो जीन्स है, वो मेरे पूरे बॉडी में सेम जीन्स है. इफ आई एम सेइंग दैट आई हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो माय होल सेल्स, ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? देयर इज नो मिक्सिंग. ऐसा नहीं है कि इफ यू टेक माय हेयर आई हैव डिफरेंट जीन्स, इफ यू टेक माय नेल्स आई हैव डिफरेंट जीन्स. Nothing like that, right? So all the cells of my body are having same gene. Same way goes with the asexual reproduction में कि एक ही organism involved है, इसीलिए there is no mixing of genes. तो if there is no mixing of genes, मतलब जैसा वो organism है वैसे का वैसा ही बन रहा है. If you are getting an organism which is looking exactly same to same, ditto copy, what do we say? Whether it is identical or similar, we will call it as it is similar, or identical, it will be identical, right? You will get
आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। क्यों आइडेंटिकल? क्योंकि वो एकदम सेम दिखेंगे, डिक्टो कॉपी पेस्ट, राइट? बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनिज्म चेंज ही नहीं, अरे डीएनए चेंज ही नहीं हुआ है। ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास जो डीएनए है, रिप्रोडक्शन के पास जो उसका डॉटर सेल होगा उसके पास भी वही डीएनए होगा, दैट्स व्हाई दे विल लुक एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर, राइट? तो ये हो गया आइडेंटिकल। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑफस्प्रिंग कैसे दिखेंगे? Let's take example of human beings. If you have your parents, तो कुछ ऐसे features होंगे that you will be like, oh, my eyes look like my mom, my nose look like my dad. Why do we say that? अरे ये तो अपने dad जैसा दिख रहा है, ये अपने mom जैसा दिख रहा है। क्यों हम बोलते हैं? Because हमारे अंदर भी कुछ ऐसे features होते हैं जो हमारे प्रीवियस जनरेशन जैसे दिखेंगे। कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो मेल जैसे दिखेंगे, मतलब फादर जैसे दिखेंगे। कुछ फीचर्स होंगे जो हमारे मदर की तरह मैच करेंगे। तो वी आर नॉट आइडेंटिकल। यू लाइक ऐसा कभी हुआ है कि a baby is born and that baby is looking exactly identical to her father or maybe mother? It never happens like that. या फिर अगर दो daughters हैं, okay, suppose sisters are there from the same mother, okay, same mother, same father, sisters are there, will they look exactly same like each other? No, right? Even though अब क्या हो रहा है कि मदर का एक जीन है, फादर का एक जीन है, उन लोग का मिक्सिंग हो रहा है, तो वो मिक्सिंग के बाद भी आधे क्या होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। एक सिस्टर में एक कॉम्बिनेशन गया, दूसरे सिस्टर में जरूरी नहीं है कि वही सेम कॉम्बिनेशन जाएगा, मे बी एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। Got it? So they don't look identical, but because there are few features जो same लगते हैं from parents, that's why they look similar. So we have similar offsprings when we are talking about your sexual reproduction. I hope it's clear till here. तो सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक मेल एक फीमेल। जो नए ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं असेक्सुअल में वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होता है। और वो मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे होगा नो फर्टिलाइजेशन और मिक्सिंग ऑफ genes, whereas यहाँ पे fertilization will take place through gametes, right? यहाँ पे gametes play a major role in sexual reproduction. How gametes are playing major role? Gametes में क्या हो रहा है कि एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। What are gametes? What are gametes? Gametes are nothing but haploid cells, right? So when I'm specifically talking about gametes, so gametes are nothing but they are haploid cells, right? Haploid cells कैसे होते हैं? I'm talking about gametes over here. Gametes are nothing but haploid cells, right? जैसे haploid cells कैसे बन रहा है? अगर एक ऑर्गेनिज्म, हम सब 2n नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बराबर? ह्यूमंस में भी 2n नंबर है। व्हाट इज द n? अभी हम बोल रहे हैं कि हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बराबर? तो जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, वैसे ये 2n जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू n। कैसे होगा कन्वर्ट? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, राइट? मियोसिस होगा और ये 2n हाफ हो जाएगा n में। अब ये जो n है, इसी n को हम बोलते हैं gametes, because these n half number of chromosome will go and fertilize. एक n होगा मेल का, एक n होगा फीमेल का, दोनों भी फ्यूज होंगे और वो 2n बनाएंगे, जो कि एक नया कॉम्बिनेशन होगा, एक नया ऑफस्प्रिंग होगा, जो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, राइट?
So there is one more, now that you are clear about gametes and how fertilization take place, अब ये जो mixing of genes है, इसी से related एक और एक point आ जाता है जो एक बहुत major difference है तुम्हारे sexual and asexual reproduction का. अब वो क्या है कि जब genes में mixing होता है तब एक बहुत important point आ जाता है, वो है variation का. So over here variation takes place. Now variation मतलब क्या? Variation मतलब changes आना. अब जैसे हम discuss कर रहे थे अब तक कि you look similar to your parent. तुम में कुछ कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो मॉम की तरह दिख रहे हैं, कुछ कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो डैड की तरह दिख रहे हैं. बट अगर तुम नोटिस करो कुछ कुछ ऐसे भी फीचर्स होते हैं जो ना मॉम की तरह दिख रहे हैं ना डैड की तरह दिख रहे हैं. राइट ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो तुम्हारे खुद के फीचर्स हैं. इट्स नॉट रिलेटेड टू योर मॉम एंड डैड, इट्स योर ओन फीचर ड्यू टू योर ओन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. राइट क्यों हो रहा है ये? इसी को हम बोलते हैं वेरिएशंस, बिकॉज यू हैव योर ओन न्यू कॉम्बिनेशंस. तो ओवर अ टाइम क्या होता है वेरिएशन में कि व्हेन an organism is reproducing from generation to generation, उस टाइम पे in every generation, first generation, second generation, third generation, there are changes happening in the cells. There are changes happening in the complete organism. हमारा way of thinking is always different from the way of thinking of our parents. Right? ये थोड़ा psychological reason हो गया. But even physically, if you will notice, there is a lot of difference between your parents and you. Even your parents are different from their parents, right? So every generation, there is some or the other changes which is happening in all the offsprings in every generation. So इसको हम बोलते हैं variation की over a time. जो हमारा पार्ट है एक नया टॉपिक, that is evolution. Evolution में कैसे हो रहा है? Organism is reproducing and over a time you will notice कि जो नए जनरेशन है वो पिछले जनरेशन से हमेशा अलग दिखते हैं. Right? So how is that happening? Like if I'm talking about an example, apes जो थे या फिर जो हमारे बहुत पुराने जो जनरेशन के organisms जो थे, humans में we have homo sapiens. होमो हम बोलते हैं कि हम होमो सेपियंस वो सब दे आल्सो बिलोंग टू आवर जनरेशन. ये तुम लोग ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. बट अगर हम उनको देखते हैं जो आदि मानव बोले जाते हैं, आदि मानव को अगर तुम देखोगे तो दे डू नॉट लुक लाइक अस एट ऑल. राइट बट कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमारी तरह हैं. जैसे कि क्या? उनके पास भी ऐसे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं. दे आल्सो हैव टीथ. राइट सेम लाइक अस. थोड़े फीचर्स चेंज है बट दे आल्सो हैव नोज, दे हैव 2 आईज. वी आर नॉट कंप्लीटली सिमिलर टू देम बट बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि काफी हद तक सिमिलर है. राइट सो स्टोन एज मैन देख लो और अभी की जनरेशन देख लो, दे आर डिफरेंट बट स्टिल दे आर वेरी मच सिमिलर. क्या हो रहा है? वही हमारे मतलब बोलते हैं पूर्वज कि हम है बहुत पुरानी जनरेशन है बट आफ्टर अ पॉइंट दे वर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड ड्यू टू वेरियस चेंजेस इन द न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स, धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीज चेंजेस वर हैपनिंग एंड फाइनली we are looking like how we are in today's time. Right? So we do belong to them. Those are old generations. But ये जो changes हुआ है sexual reproduction के वजह से, उस changes को हम बोलते हैं variation. And this variation is very important to happen. Question is why? Because always a good change will be incorporated in the new combination in new offsprings. ओके तो ये वेरिएशन एक ऐसी चीज है जो कि मिसिंग है. कहाँ पे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो वेरिएशन टेकिंग प्लेस. एक भी वेरिएशंस नहीं है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ा रहा है. यहाँ पे सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ रही है. There is good changes which is happening in the genes of new generation. Okay,
So here one more point is very important when we are talking about variation, कि ये variation was one reason जिससे हमारा evolution भी बहुत अच्छे से हुआ था. Evolution मतलब क्या? If you must have studied already, I guess Darwin's theory तुमने पढ़ा होगा. क्या होता है Darwin's theory? Darwin was a scientist, Charles Darwin, जिन्होंने कहा कि time के साथ साथ, okay, after over a period of time, long period of time, organisms change. There are variations taking place in new organisms, and that leads to evolution. Okay, that means कि your organisms are changing, evolutions हो रहे हैं, and उसमें भी जो सबसे fit है वही survive हो रहा है. मतलब अगर तुमको बदलते मौसम के साथ फिट रहना है तो तुमको अपने जीन्स में भी चेंज लाते रहना पड़ेगा. ओके, बिकॉज अभी जैसे बहुत पोल्यूशन है, you know, there are so many climatic changes which is happening. So all these things, to acclimatize with that, you also will have to change your genetics, right? तो over a period of time अगर देखोगे, जैसे dinosaurs जो थे, dinosaurs were, although they were huge, they were strong, but they were not genetically so fit. That's why over a period of time dinosaurs का number कम होते गया, and finally they are extinct, right? Same way, if you want to survive in an ecosystem, you will have to evolve. You will have to bring variations. That's why sexual reproduction is very much important as compared to asexual reproduction. Okay, these are basically different differences between your sexual and asexual reproduction. Okay, so we'll start with asexual reproduction. Okay, we'll take sexual reproduction in later part. अभी obviously I'm not going to talk about what is asexual reproduction. It is very clear, एक ही parent involved है, genetic recombinations, नए combinations नहीं बन रहे हैं, सारे के सारे offsprings जो होंगे वो identical होंगे. That means cut copy paste, same to same xerox copy दिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे fertilization नहीं होगा. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएशन भी नहीं होगा. देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं. पहला पढ़ लेते हैं. पहला होता है तुम्हारा एक टाइप ऑफ asexual reproduction, that is fission. Now the name itself suggests fission. When I'm saying fission, that means क्या, fission में क्या हो रहा है कि fission में your some cutting is happening. तो when I'm saying some cutting, वो cutting को ही हम बोलते हैं fission. Okay? Okay? So, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वो है अमीबा का. ठीक है, तो जैसे ये एक अमीबा है. अमीबा तुम सबको पता होगा कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है ना, वो उसका सूडोपोडिया विच इज द बॉडी ऑफ अमीबा, वो ऐसे इरेगुलर शेप का होता है. तो वो ये हमारा एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का. ठीक है, अब ये अमीबा में क्या होगा कि पहले पूरे बॉडी डिवाइड करने के पहले, जब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे असेक्सुअल है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही अमीबा प्रेजेंट होगा. ये अमीबा को रिप्रोड्यूस करने के लिए दूसरे अमीबा की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे ह्यूमंस में एक मेल को फीमेल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड. दैट्स व्हाई ओनली वन अमीबा विल बी इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन. क्या होगा, ये अमीबा कट होगा. जैसे मैंने बोला फिजन मींस कटिंग, तो एक अमीबा कट होगा और दो अमीबा में बन जाएगा. राइट, तो यहाँ पे कटिंग कैसा होगा, पहले अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा. ठीक है, तो वो साथ साथ में होता रहेगा. ये अमीबा जो है ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा. ठीक है, इवन उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी बढ़ता रहेगा. बढ़ता रहेगा बेसिकली क्या, वो स्ट्रेच हो रहा है. ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, साइज बढ़ रही है, क्योंकि अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है वो भी रेप्लिकेट हो रहा है, डबल हो रहा है.
रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब वन डीएनए is getting converted, it is making its own replica, it's making its own copy. ओके तो ये रेप्लिकेशन होगा एंड रेप्लिकेशन होने के बाद धीरे धीरे इट विल गो गेट मोर स्ट्रेच्ड, न्यूक्लियस जो है और स्ट्रेच होता रहेगा एंड सो विल बी द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. एंड फाइनली तुम देखोगे बीच में यहाँ पे जो है ऐसे 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 कटिंग्स होने लगेंगे धीरे धीरे. दैट मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट, इफ यू विल सी ये पूरा जो न्यूक्लियस था वो पूरी तरह से अलग हो गया, न्यूक्लियस अलग हो गया. अब उसका पूरा बॉडी भी धीरे धीरे सेपरेट आउट हो रहा है एंड फाइनली ये एक नया डॉटर सेल बन जाएगा, ये अमीबा, और ये भी एक अलग अमीबा बन जाएगा with its own nucleus and genetic material. Now अभी ये जो हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अमीबा कट होके दो में डिवाइड हो गया. वन इज गिविंग राइज टू टू, तो दो में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी. बाइनरी क्यों? क्योंकि एक डबल हो रहा है, बाय हो रहा है, तो दो के लिए यूज कर रहे हैं बाइनरी. और क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो इट इज बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. तो अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म, उसका एक अमीबा विल कट इनटू टू, that is your two different amoebas, and this is what is called as binary fission in amoeba.